ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں بہت تیز سمندری سیلاب آتا ہے، جس کی وجہ سے سب گاؤں والے اپنے اپنے گھروں اور گائے بکریوں کو چھوڑ کر گاؤں سے دور چلے جاتے ہیں، اور ان کی گائے بکریاں سیلاب کی لپیٹ میں آ جاتی ہیں، جن میں سے بہت سارے جانور سیلاب کے پانی میں ہی ڈوب کر مر جاتے ہیں، اور جو کچھ جانور زندہ بچتے ہیں، سیلاب انہیں ان کے گاؤں سے بہت دور لے جا کر پھینکتا ہے۔ اسی میں ایک بکری سیلاب کے پانی کے ساتھ کسی جنگل میں آ پہنچتی ہے۔ ارے یہ کیا؟ یہ میں کہاں آ گئی؟ کاش مجھے میرا مالک اپنے ساتھ ہی گاؤں سے دور لے گیا ہوتا، تو آج میں اپنے مالک سے جدا نہیں ہوتی۔ اور یہ جگہ تو مجھے کسی جنگل جیسی لگتی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ کچھ دن میں میرے بچے ہونے والے ہیں۔ اب میں اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کروں گی؟ اس جنگل میں تو بہت سارے شکاری جانور بھی ہوں گے۔ اتنے میں ایک لومڑی اچانک سے اس بکری کے سامنے آتی ہے۔ ارے واہ، کافی وقت کے بعد میں نے یہاں ایک بکری کو دیکھا ہے۔ نہ جانے کتنے سال پہلے میں نے ایک بکری کا شکار کیا تھا۔ ویسے تم اس جنگل میں آئی کیسے؟ ہمارے گاؤں میں ایک بہت تیز سمندری سیلاب آیا تھا، جس میں بہہ کر میں آج اس جنگل میں آ پہنچی ہوں۔ اوہ ہو، یہ تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوا، لیکن میرے لیے تو یہ سب بہت اچھا ہے۔ کیا مطلب؟ ارے میں نے بکری کا مانس چکھا ہے، مجھے پتا ہے بکری کا مانس بہت لذیذ ہوتا ہے، تو آج میں تمہیں کھا کر اس لذیذ مانس کا مزہ لینا چاہتی ہوں۔ آخر کب تک میں جنگل کے چوہے اور پرندے کھا کر گزارا کروں گی؟ مجھے بھی تو اچھا مانس کھانے کا پورا حق ہے۔ دیکھو، مجھے جانے دو، کچھ دنوں میں کچھ بچوں کو جنم دینے والی ہوں۔ تم فی الحال کسی دوسری بکری کا شکار کر لو۔ ارے پاگل ہو گئی ہو کیا؟ آج تک اس جنگل میں نے کوئی بھی بکری نہیں دیکھی، یہاں تک کہ اس جنگل کے راجا شیر نے بھی آج تک کسی بکری کا مانس نہیں چکھا، تو میں یہ موقع اپنے ہاتھ سے کیسے جانے دوں؟ ارے لومڑی، اگر آج تم مجھے کھا جاؤ گی تو میرے بعد تمہیں پھر کبھی بھی کسی بکری کا مانس کھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ ہاں، ویسے بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، مگر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں کہنا چاہتی ہوں کہ آج تم مجھے چھوڑ دو اور مجھے کچھ وقت دو، جیسے ہی میرے بچے ہو جائیں تو تم مجھے آ کر کھا لینا، پھر میرے بعد تمہیں کھانے کو میرے بچے بھی ملیں گے۔ اب تمہاری مرضی کہ تم اب ایک بکری کھانا چاہتی ہو یا بعد میں بہت ساری۔ بکری کی یہ بات سن کر لومڑی سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ ویسے بات تو اس بکری کی بالکل ٹھیک ہے، کچھ دن بعد یہ اور بچوں کو بھی جنم دے دے گی، پھر مجھے کھانے کو اور بھی بکریاں ملیں گی۔ ویسے بات تو تم نے بہت سمجھداری والی کی ہے، لیکن اگر آج میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو کوئی اور شکاری جانور آ کر تمہارا شکار کر لے گا، تو پھر میں کیا کروں گی؟ تم ایسا کرو کہ مجھے جنگل میں کسی ایسی جگہ پر چھپا لو جہاں کوئی دوسرا شکاری جانور نہ آ سکے اور میں اپنے بچوں کو جنم دے دوں۔ ارے ہاں، ایسی ایک جگہ کا مجھے پتا ہے، چلو میرے ساتھ۔ لومڑی بکری کی بات مان جاتی ہے اور وہ بکری کو لے کر جنگل کی ایک خفیہ جگہ پر لے آتی ہے۔ یہ لو بکری، تم اپنے بچوں کو جنم دینے تک اس جھونپڑی میں رہ سکتی ہو۔ یہاں تو میں رہ لوں گی، لیکن یہاں تو کوئی شکاری جانور نہیں آئے گا نا؟ ارے نہیں، یہاں تو شیر بھی نہیں آتا۔ کچھ دن پہلے اس جنگل میں کچھ شکاری آئے تھے، انہوں نے ہی یہ جھونپڑی اپنے رہنے کے لیے بنائی تھی، اور پھر کچھ دن یہاں رہنے کے بعد وہ اس جھونپڑی کو ایسے ہی چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے۔ لیکن جنگل کے باقی جانور ان شکاریوں کے ڈر سے ابھی بھی یہاں نہیں آتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شکاری ابھی بھی یہاں رہ رہے ہیں، اسی لیے یہاں پر تم بنا ڈرے آرام سے رہ سکتی ہو۔ ٹھیک ہے لومڑی، تمہارا بہت شکریہ۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا میں کچھ دن بعد پھر آؤں گی، اگر تم نے بچے دے دیے تو میں تمہیں کھا جاؤں گی۔ یہ بول کر لومڑی وہاں سے چلی جاتی ہے، اور بکری اس بار اپنی چالاکی اور سمجھداری کی وجہ سے اپنی جان بچا لیتی ہے۔
इस सब में कुछ अरसा गुजर जाता है और बकरी एक साथ 3 बच्चों को जन्म दे देती है। और कुछ दिन के बाद लोमड़ी जंगल में शिकार की तलाश में घूम रही होती है। तो इतने में लोमड़ी को याद आता है कि अरे अब तो बहुत दिन गुजर गए, अब तक तो उस बकरी ने बच्चों को जन्म दे दिया होगा। आज मुझे वैसे भी बहुत भूख लगी है और शिकार भी नहीं मिल रहा, क्यों ना आज उस बकरी से ही अपना पेट भरा जाए। ये सब बोलने के बाद लोमड़ी बकरी की तरफ रवाना हो जाती है। बकरी, अरे ओ बकरी, कहाँ हो, बाहर आओ। लोमड़ी की आवाज सुनकर बकरी अपने घर से बाहर आती है। हाँ बोलो लोमड़ी, क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रही हो? बताओ बकरी, तुमने बच्चों को जन्म दे दिया या नहीं? हाँ, मैंने 3 बच्चों को जन्मा है। रुको तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। टिंटू, पिंटू और चिंटू, तीनों बाहर आओ, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। बकरी की आवाज सुनकर बकरी के तीनों छोटे बेटे झोंपड़ी से बाहर आते हैं। अरे वाह, तुम्हारे बाद मुझे 3 और बकरे खाने को मिलेंगे। हाँ लोमड़ी, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर उस दिन तुम अपनी समझदारी से काम ना लेती तो तुम्हें एक ही बकरी पर गुजारा करना पड़ता। हाँ वो तो है, मैं हूँ ही इतनी समझदार। तो ठीक है बकरी, अब तुम तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें खाने वाली हूँ। वो तो ठीक है लोमड़ी, लेकिन मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। मुझे खाने के बाद इन छोटे छोटे बच्चों को खाने पर तुम्हारा पेट बिल्कुल भी नहीं भरेगा। कोई बात नहीं, मैं इनके बड़े होने का इंतजार कर लूंगी। हा, लोमड़ी कैसी बातें कर रही हो? मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, ये मेरे दूध के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अगर तुमने मुझे खा लिया तो ये भूखे रहने की वजह से ही मर जाएंगे। अब अगर तुम्हें इतना ही सब्र किया है तो थोड़ा सा और सब्र कर लो, बस कुछ ही महीनों की बात है, फिर मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे। अरे बकरी, ये बात करके तो तुमने मुझे और भी मुश्किल में डाल दिया है, अब मैं क्या करूं? लोमड़ी, मुझे पता है तुम बहुत ही चालाक और समझदार हो, जो भी फैसला करोगी मुझे वो मंजूर होगा। बकरी की ये बात सुनकर लोमड़ी एक बार फिर से सोच में पड़ जाती है। अरे ये क्या, ये मैं कहाँ फंस गई? वैसे बकरी की बात भी ठीक है, मुझे थोड़ा और सब्र करना चाहिए और बकरी के बच्चों के थोड़ा बड़ा होने का इंतज़ार करना चाहिए। अगर मैंने अभी बकरी को खा लिया तो अब तक मैंने जितना भी सब्र किया है वो सब फजूल जाएगा। हा। अरे बकरी, मैं तो मजाक कर रही थी, क्या मैं तुम्हें इतनी बेवकूफ़ लगती हूँ कि तुम्हें खाकर तुम्हारे बच्चों को ऐसे ही मरने दूंगी? मैं बहुत समझदार लोमड़ी हूँ, जब तक तुम्हारे बच्चे बड़े नहीं होते मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। क्या, सच में? हाँ सच में। अरे वाह लोमड़ी, लोग सच कहते हैं कि लोमड़ियाँ बहुत ही चालाक और समझदार जानवर होती हैं। हाँ वो तो है, चलो अब मैं चलती हूँ, मैं कुछ अरसे के बाद दोबारा आऊंगी। ये बोलकर लोमड़ी एक बार फिर से बगैर शिकार किए ही वापस लौट जाती है और बकरी अपनी चालाकी से अपनी और अपने बच्चों की जान बचा लेती है। इस सब में कुछ महीने गुजर जाते हैं। अरे अब तक तो बकरी के बच्चों ने खुद से घास खानी शुरू कर ली होगी, लेकिन मुझे लगता है मुझे कुछ और वक्त इंतज़ार करना चाहिए, वरना फिर से वो बकरी कोई ना कोई बहाना सुनाकर अपनी जान बचा लेगी। अब मैं कुछ महीनों के बाद ही जाऊंगी, तब तक बकरी के बच्चे जवान हो जाएंगे, तब मैं बकरी की एक बात नहीं सुनूंगी और उसे ऐसे ही उसके बच्चों के समेत खा जाऊंगी। अब इस सब में कुछ और महीने भी गुजर जाते हैं और वहाँ बकरी के तीनों बेटे हट्टे कट्टे और जवान हो जाते हैं। अब तो बहुत अरसा हो गया है, अब तो वो तीनों बच्चे भी जवान हो गए होंगे। इस बार उस बकरी का कोई बहाना नहीं चलेगा, इस बार मैं उन चारों को खाऊंगी। हा। ये बोलने के बाद एक बार फिर से लोमड़ी बकरी की तरफ रवाना हो जाती है। अरे लोमड़ी, तुम आ गई? हाँ बकरी, कहाँ हैं तुम्हारे तीनों बेटे?
अब तक तो वो जवान भी हो गए होंगे। हाँ हाँ, अब तो वो तीनों बहुत बड़े हो गए हैं। रुको, अभी बुलाती हूँ उन्हें। टिंटू, पिंटू और चिंटू, तीनों बाहर आओ, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। इतने में बकरी के तीनों बेटे झोंपड़ी से बाहर आते हैं। वो तीनों कद में लोमड़ी और बकरी से भी बहुत बड़े हो गए होते हैं। उन्हें देखकर लोमड़ी भी बहुत हैरान हो जाती है। अरे वाह बच्चों, तुम तीनों तो बहुत बड़े और हट्टे कट्टे हो गए हो। बकरी, तुमने सच में अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाला है। हाँ, वो तो है। तो ठीक है बकरी, अब तुम तैयार हो जाओ। आज मैं तुम्हें खाने वाली हूँ और तुम्हारे बाद एक एक करके तुम्हारे बेटों को भी खाऊंगी। और अब इस बार तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं। लोमड़ी, सच में तुम कितनी बेवकूफ हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बेवकूफ बोलो। हाँ लोमड़ी, तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। अगर तुम अक्लमंद होती तो तुम पहले दिन ही मेरा शिकार कर लेती। अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे खाने की कोशिश करोगी और मेरे बेटे तुम्हारा मुंह देखेंगे? चालाक बकरी, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। हर बार तुम मुझे बेवकूफ बनाती रही। इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर लोमड़ी जैसे ही बकरी पर हमला करती है तो बकरी अपने बच्चों के साथ मिलकर लोमड़ी की खूब पिटाई लगाती है। यहाँ तक कि मार मार के लोमड़ी का बुरा हाल कर देती है और लोमड़ी जख्मी भी हो जाती है। अरे चालाक बकरी, तूने और तेरे बच्चों ने मिलकर जो मेरी बुरी हालत की है, इस सब का मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी। ये बोलकर लोमड़ी बकरी और उसके बच्चों से मार खाने के बाद जख्मी हालत में ही वहाँ से चली जाती है और शेर के पास पहुँच जाती है। अरे लोमड़ी, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारी ये हालत किसने की? शेर खान, इस जंगल में रहने वाली एक बकरी और उसके तीनों बच्चों ने मिलकर मेरी ये हालत की है। हा 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 हा, लोमड़ी, लगता है तुम पागल हो गई हो। मैंने आज तक इस जंगल में किसी बकरी को नहीं देखा और अगर होती भी तो अब तक किसी शिकारी जानवर ने उसका शिकार कर लिया होता। शेर खान की ये बात सुनने के बाद लोमड़ी शेर को सारी बात बताती है, लेकिन शेर को लोमड़ी की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। देखो लोमड़ी, तुम्हारी बात पर तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं, लेकिन मुझे भी इस वक्त बहुत भूख लगी है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शेर की ये बात सुनने के बाद लोमड़ी शेर को लेकर बकरी के घर की तरफ रवाना हो जाती है और वहाँ दूसरी तरफ बकरी भी पहले से ही अपने घर को छोड़कर अपने बेटों के साथ जंगल से गांव की तरफ रवाना हो जाती है, क्योंकि बकरी को पता होता है कि इतनी मार खाने के बाद लोमड़ी उनसे बदला ज़रूर लेगी और वहाँ लोमड़ी शेर खान के साथ बकरी के घर आ पहुँचती है। बेवकूफ़ लोमड़ी, मुझे तो पहले से ही तुम्हारी बात पर यकीन नहीं था, अब तुम भुगतो। ये बोलकर शेर खान लोमड़ी पर हमला कर देता है और उसे खा जाता है और वहाँ बकरी अपने बच्चों के साथ वापस अपने गांव अपने मालिक के पास आ जाती है। और इस तरह एक समझदार बकरी अपनी चालाकी से एक लोमड़ी को बेवकूफ़ बनाती है और जंगल में अपनी और अपने बच्चों की हिफाजत करती है और लोमड़ी को उसकी बेवकूफ़ी की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। और इस तरह ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।